Morning students, welcome to my YouTube channel, and I hope that you all are happy and well at your homes during this emergency crisis of coronavirus. And I also hope that you spend this time for the beneficial and the useful and creative things to grasp your confidence, to enhance your thinking and creative skills. Okay, so basically this is the first video of class 8, and I hope that you understand all the basic concepts of the terms of all the chapters which I give you in this lecture. And basically let's start and let's move to the first chapter of constitution. And we start our class 8 syllabus from taking civics as the starting chapter. Okay, so let's start our first chapter of political science, so that is also known as civics. Okay, basically civics has two names. Okay, civics means, or political science means, in which we study about the politics of our country. Okay, basically simply means political science, or civics simply means in which we study about the polity of our country. So that is known as political science, or in any country. Okay, so political science is the subject which gives us understanding about the politics and the political institutions of any country. Okay, so let's start our chapter. The chapter name is, that is, the Indian Constitution. Okay, basically the first chapter of class 8 syllabus of civics book or political science book is wide what is Indian Constitution or the Indian Constitution. Okay, so let's start our chapter by introducing you the term constitution. Okay, first of all we have to understand the term constitution. Constitution क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, और किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको पता लगेगी. एज यू ऑल नो दैट यू सेलिब्रेटेड Republic Day on 26th January. Okay, and we celebrate 26th January till since 1950 and till up to date and till we die. Okay, so basically 26th January 1950 was the date when our Constitution of India was enacted. Means 26 जनवरी 1950 वह दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ था. अब बात ये आती है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. तो ये सब क्वेश्चन के ऊपर हम इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर डील करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर आगे. सो सबसे पहले है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, or constitution is a document in which the rules and regulation are mentioned to govern a particular country. Okay, basically constitution is a document in which there are rules and regulations for governing a country. मतलब क्या कि constitution एक ऐसा document होता है जिसके अंदर rules and regulation होते हैं कैसे किसी country को चलाया जाता है. Okay, so the definition of constitution is that constitution is a legal document in which rules and regulations or laws are there which is required to govern a country. किसी country को चलाने के लिए हम लोग use करते हैं what, that is constitution. Okay, constitution के बारे में बात ये आती है, in this century of 21st century every country almost all over the world have a particular constitution. Okay, every country of the democratic world have a constitution. Okay, why? Because constitution is needed in this 21st century, because every country follows certain rules and regulations. Every country want to follow every country give rights and freedom to the people, so that is only ensured by the constitution of that country. मतलब हर country को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है. Like we can take the example from school. Okay, a school must be run by adopting certain rules and regulation. Okay, किसी स्कूल को चलाने के लिए we have adopt some code of conduct. किसी स्कूल को चलाने के लिए code of conduct का यूज करते हैं, due to which a school is run properly by that code of conduct. So that's why our country also needs a constitution according to which
our country governed or run by that way. Okay, so the next topic of this chapter is why we need a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना जरूरी है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें पड़ती है. तो उसमें मेन चीज क्या आती है कि बेसिकली इफ इट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इज, यहाँ पे आता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द स्टेट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के नेचर को बताता है, किसी देश के बारे में बताता है ये देश किस तरह का है. वहां पे राजशाही है, मतलब वहां पे राजा शासन कर रहा है, या वेदर इट इज अ मोनार्की, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, मीन्स द रूल ऑफ किंग वहां पे है, या फिर वहां पे लोगों का शासन है, मीन्स वहां पे डेमोक्रेसी है, या वहां पे ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी मीन्स अपना ही सब लोग रूल चला रहे हैं बैठ के. सो दैट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन specifically clarify the nature of the state first of all. Okay, the second most important concept or the thing or the work of constitution is that constitution gives us an introduction of the rules and regulations or the organization of government. Okay, constitution gives us a glimpse or the introduction of the organization, structure and the works and powers and functions of the government. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा चीज हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमें बताता है कि हमारा संविधान किस तरह का है. ओके, किस तरह की चीजें हमने अडॉप्ट की हैं, किस तरह की चीजें हमने लागू की हैं और किस तरह की चीजें आपका चल रही हैं. ओके, तो बेसिकली आपका संविधान हमें गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में भी क्या करता है, इन्फॉर्म करता है. ओके, बताता है कि गवर्नमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है. सो दैट इज द केस ऑफ द सेकेंड significance of constitution. So that constitution gives us an introduction of the parts, organizations, structures, functions, power of the government. The third significance of the constitution is that it also provides fundamental rights to its citizens. Means constitution guarantee the फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स लोगों को देता है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही आपका लोगों को क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वी गेट आवर फंडामेंटल राइट्स. मीन्स हमें जो राइट्स मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और उन्हीं से वो राइट्स क्या होते हैं, पक्के होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, ताकतवर होते हैं. ओके, हमें जो राइट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वी गेट राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री. ओके, the fourth feature of the constitution or the significance of the constitution is that it limits the power of the government. Means जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के अंदर होता है तो गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिट लगाता है, अंकुश लगाता है, उसके ऊपर लिमिट लगा देता है कि गवर्नमेंट को कितने पावर्स का यूज करना है, गवर्नमेंट कितनी पावर्स यूज कर सकती है, कितनी कौन सी पावर को गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगी. ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेवारी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स ये गवर्नमेंट की पावर्स को क्या करता है, लिमिट कर देता है, उनके ऊपर अंकुश लगा देता है. ये बताता है कि गवर्नमेंट कितना पावर यूज कर सकती है और कितना नहीं. सो दैट इज द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अस अ ग्लिम्प्स अबाउट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपका पावर्स का यूज करती है, वो कैसे फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, कैसे चीजें हमें मिलती हैं, ये सब चीजें आपका मिलती है हमें किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रिक्वायरमेंट टू रन अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज the features of Indian Constitution. Okay, so basically if we want to understand the features of the Constitution, then the first and the foremost thing is to understand the meaning of the Constitution, and I hope that you understand the meaning of the Constitution. Okay, so let's start our next topic, features of Indian Constitution. Okay, basically I have to tell one more thing in this regard, that basically first of all our Indian Constitution is the world's one of the largest constitution of the world, one of the largest and lengthiest constitution of the whole world. हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक आपका संविधान माना जाता है. ओके,
हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ. ओके, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है या बताया जाता है, या वो हैं हमारे फादर. ओके, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो पिता हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को स्ट्रक्चर किया, ड्राफ्ट किया, जिन्होंने मेन जो पर्सन आपका थे संविधान को बनाने के पीछे सबसे मेन जो थे वो थे, दैट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ फेमस एंड एमिनेंट लॉयर इन द freedom struggle, at the time of freedom struggle. Okay beta, so let's discuss the features of the Indian Constitution. Okay, so the first feature of the Indian Constitution that it is a written constitution. Okay, Indian Constitution क्या है? एक written constitution है, लिखित संविधान है. Some constitution are also unwritten, like if we see the case of Britain, then we see one thing, that the British Constitution is an unwritten one. Okay, it is not written by at a particular time, but the Indian Constitution is a written one, is a written one example. Okay, the first feature of the Indian Constitution is that it is a written constitution. Okay, let's move to the second feature of the Indian Constitution. That is the second feature of the Indian Constitution is we have a parliamentary type of government. We have a parliamentary means हमारे यहाँ क्या होता है, that is a provision for parliamentary government. हमारे यहाँ parliamentary system होता है in which the rulers are elected by the direct election. Okay, जो rulers होते हैं, जो आपके MPs होते हैं, वो directly election के जरिए क्या होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करते हैं. ओके, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है आपका लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, और हमारे यहाँ जो सरकार है वो किस तरह की सरकार है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं और प्रेसिडेंट के पास पावर बहुत होती है, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर कम होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है. वेदर इफ वी सी द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें, देन दे हैज बीन फॉलोइंग a constitution of presidential type, means they have the presidential form of government. मतलब वहां पे प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं. हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट पावरफुल है, मीन्स पार्लियामेंट पावरफुल का मतलब प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है. ओके, द नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस, द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट ऑल्सो अलाउज द सेपरेशन ऑफ पावर्स. मतलब हमारे यहाँ क्या है, सभी पावर्स बटी हुई हैं, ऑल द पावर्स आर सेपरेट in one or another form. Like basically first of all I want to give you a detailed short description of the separation of powers. Let's first of all we have to understand in a democracy, किसी भी लोकतंत्र में, in a democracy there are three types of pillars of democracy. किसी भी डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स होता है, तीन खंबे जिसके ऊपर पूरी डेमोक्रेसी टिकी है. So that is the first pillar is named by legislature, the second one is executive, and the third one is judiciary. Okay, so legislature means the legislature is the pillar which make the law. मतलब legislature वो पार्ट होता है डेमोक्रेसी का जो कानून बनाता है. एग्जाम्पल पार्लियामेंट क्या करता है, कानून बनाता है. जो सेकंड पिलर होता है, द सेकंड पिलर इज एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो कानूनों को लागू करता है, कानूनों को पूरी तरीके से नीचे तक फैलाता है, लागू करता है. ओके, सो एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव का होता है व्हाट, दैट इज गवर्नमेंट, जो पार्टी सरकार चलाती है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव. थर्ड आता है लेजिस्लेचर क्या करता है, कानूनों को टेस्ट करने का काम करता है. ओके, सो तीनों के एक एक काम हो गए. मैं आपको दोबारा से बताता हूँ. लेट्स गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्री कॉन्सेप्ट. दैट इज लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, लेजिस्लेचर कानून बनाता है. एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉ, एग्जीक्यूटिव कानूनों को लागू करता है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ दिस इज दैट जुडिशियरी टेस्ट द लॉ, जो कानूनों को टेस्ट करता है, एग्जामाइन करता है, उनको देखता है कि वो कानून सही है या नहीं है. अगर वो सही नहीं होते तो उन कानूनों को वो हटा देता है. ओके, सो ये क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. जो आप पावर्स देख रहे हैं आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सो दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. ये क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ पावर. मतलब तीनों की पावर्स क्या है, सेपरेट है. एग्जीक्यूटिव की अलग, लेजिस्लेचर की अलग, एग्जीक्यूटिव की अलग, जुडिशियरी की अलग, तीनों की अलग अलग पावर्स है. ओके, सो दैट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स. द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट
fundamental rights. The Constitution, Indian Constitution gives us 6 fundamental rights. The first fundamental right is that right to equality. The second fundamental right is right to freedom. The third is right against exploitation. The fourth fundamental right is right to freedom of religion. The next fundamental right is educational and cultural and educational rights. And the last fundamental right is right to constitutional remedies. There are total 6 fundamental rights in our constitution through which a citizen strength or gain more power in these types of government. Means a citizen is lead a happy and peaceful life through different fundamental rights. Means the citizen have certain rights in a democracy due to which he can lead a happy and peaceful and purposeful life. ओके मतलब राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी लोगों को इक्वालिटी है, वो कोई भी काम कर सकते हैं. राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता है हर काम करने की, सभी लोग समान है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, हमारा कोई एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता, हमारे को विरुद्ध कोई आपका एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता, हमारे खिलाफ कोई शोषण नहीं कर सकता. उसके अलावा सभी को अपने धर्म मानने की इजाजत है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एजुकेशन कल्चर राइट्स, जो माइनॉरिटीज है हमारे यहाँ, माइनॉरिटीज मतलब जिस रिलीजन की संख्या कम है हमारे देश के अंदर, उनको अपने एजुकेशनल कल्चर राइट्स हैं. और 6 फंडामेंटल राइट्स है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, जिसके जरिए हम लोग अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एबोलिशन करता है कोई, तो हम उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा गया है. ओके, सो दीज आर 6 फंडामेंटल राइट्स. एवरी सिटीजन हैव, every Indian citizen have these 6 type of fundamental rights. Okay, the last feature of the Indian Constitution is secularism. Secularism means in India every person or the religion have to practice its own religion and profess its own religion and expand its every community has the right to profess and practice their own religion. मतलब हमारे यहाँ क्या है, सभी लोगों को अपना राइट्स दिया गया है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का. हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, मतलब स्टेट के सामने, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लिए सभी रिलीजन क्या है, बराबर है, कोई भी रिलीजन एक दूसरे से ऊपर नहीं है. सो दैट इज सेक्युलरिज्म. ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी रिलीजन्स क्या है, इक्वल है गवर्नमेंट की नज़र में, सरकार की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में क्या है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है, कोई भी रिलीजन एक दूसरे से ऊपर नहीं है, सब लोग रिलीजन क्या है, इक्वल. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर. And if you have any doubt and any query regarding any topic discussed by me, then you can comment, or you can comment in the comment section, and you can also comment, or you can also comment in the class 8th group. Okay, if you don't want to and if you don't get any point. Okay, so let's hope for a better tomorrow, for a better world, and for a better and a peaceful environment after the COVID-19. Okay, so thank you, and thank you for watching me.